to all of you, class 10. Welcome to all of you once again, class 10, and welcome to all of you in physics class. Okay, today we will discuss about the chapter magnetic effect of electric current. Now today we will discuss about or that we can prove with an experiment to show that magnetic effect of electric current. Okay, once again I would like to explain you that today we will discuss about magnetic effect of electric current. With an experiment we can do this. Okay, and first time in 1820 the Oersted was an scientist. He was done this experiment first time. Okay, and now let us hear to the whiteboard. It is given the magnetic effect of electric current with an experiment to demonstrate the magnetic effect of electric current. Okay, we take a thick insulated copper wire. This is the insulated copper wire. This is rectangular shape wire. This is the insulated wire. Okay, and here is given in such a way that the portion AB of the wire, this is the AB of the wire, is in the north-south direction. This is the north direction, was the south direction. Okay, this is the south direction, this is the north direction. And now a plotting compass M, this is the plotting compass M. It is also called magnetic compass. Okay, M is placed under the wire AB. This is beside the wire AB. This is the AB direction, and this one is the placed here. And now the two ends of the wire are connected. This is the two ends of the positive end, the negative end are ends of the wire are connected with the battery. Okay, and now there is a switch also, and there is given that let us pass electric current through wire AB by pressing the switch. This is the switch. We have to pass electric current by switching on the switch. After on the switch, we will see that wire AB by pressing the switch is also here, and after switching after pressing this is the direction, this is the position of pressing of switch. Okay, on passing the current we find that compass needle is deflected from its north-south direction. This is the north-south direction, but whenever we passes the current, electric current, through the circuit of the copper wire, then we see that there is a deflection takes place on the another side. Okay, and when the current is switched off, the compass needle returns to its original position. This is the original position of the magnetic compass, that is also here. And when the current is switched off, the compass needle returns to the original position. It is, once again I remind you, the deflection of compass needle by the current carrying in the experiment shows that the current carrying wire, this is current carrying wire. This experiment shows that an electric current produces a magnetic field. This is after passing the electric current, there is a magnetic field produced, and this is the reason of deflection of the magnetic compass needle of the this is the needle of the magnetic compass. Okay, and this by this experiment we can show that the demonstration, the experiment to show the magnetic effect of electric current. Once again एक बार और फिर मैं बता दूं आपको, ये जो टॉपिक हम लोग का है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, चुंबकीय प्रभाव, विद्युत का चुंबकीय प्रभाव, ये हमारा टॉपिक है। और उसमें एक एक्सपेरिमेंट के सहारे हम प्रूफ करेंगे कि किस तरह से मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे दिखलाया जाता है, कैसे प्रदर्शित होता है, दिखाई पड़ता है, इसे हम लोग शो करेंगे। और सबसे पहले 1820 ईस्वी में ऑरिस्टेड एक साइंटिस्ट था जर्मन का, और उसने इस एक्सपेरिमेंट को किया था इसने पहले, और उसी एक्सपेरिमेंट के सहारे उसने बहुत सारे खोज किए थे। और फिर आज हम लोग देखें कैसे एक्सपेरिमेंट था वो, उसको देखें गौर से। ठीक है, तो देखिए एक कॉपर वायर है, ये देख रहे हैं रेक्टेंगुलर शेप का एक कॉपर वायर है, और कॉपर वायर का एक छोर जो है ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखा गया है। और फिर इसका ये सर्किट, जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये जोड़ा गया है। देखिए यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, इसका दो पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल बैटरी से जोड़ा गया है, और ये स्विच है। ठीक है, और इस तरह से अभी करंट इसमें फ्लो नहीं कर रहा, ये इस तरह से दर्शाया जा रहा है स्विच का, ताकि इसमें हमारा ये हमारा ओपन सर्किट है।
क्लोज सर्किट जब होगा तो करंट पास कर, अभी करंट पास नहीं कर रहा है। और बगल मैग्नेटिक कंपास है, मैग्नेटिक नीडल कंपास भी कहते हैं इसे, हम प्लॉटिंग कंपास भी कहते हैं इसे। और इसके सारे डायरेक्शन पता है, इसी के अंदर डिफ्लेक्शन होगा, मुड़ाव होगा, मुड़ेगा। ये देखिएगा किस तरह से मुड़ेगा, जैसे ही करंट पास करेंगे तो मुड़ जाएगा ये। तो देखिए अब दूसरा ये जो है इसी के, इसमें जैसे ही करंट में पास, देखिए यहाँ पे डायरेक्शन है, यहाँ पे ये शो कर रहा है, करंट जैसे टच किया यहाँ पे तो ये करंट शो का स्विच जो है यहाँ पे ये है ऑन, ये है हमारा ऑफ स्विच का, ऑफ का पोजीशन, ये स्विच ऑन है। ये ऑन जैसे हमने किया तो देखिए करंट फ्लो करना शुरू कर दिया। करंट जब फ्लो करेगा, फ्लो करने के बाद देखिए कि जैसे ही इधर से गुजरेगा बगल से यहाँ से करंट, वैसे ही यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन होगा। ये पहले डिफ्लेक्शन सीधे था, ये डिफ्लेक्शन के बाद ये मुड़ जाएगा, राइट साइड में मुड़ जाएगा। और जैसे दाहिने तरफ मुड़ेगा और जैसे ही करंट फ्लो कराना बंद कर देंगे हम लोग इसमें, तो वैसे फिर से ये ओरिजिनल पोजीशन, ये फिर पहले की तरह, ये देखिए ओरिजिनल पोजीशन है, ये पहले की तरह पुनः ये आ जाएगा। और इस तरह से हम देखते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट जो है, जब किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में, किसी कंडक्टिंग वायर में इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते हैं, फ्लो कराते हैं, तो मैग्नेटिक कंपास के अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। और ये हम इस एक्सपेरिमेंट से, इस प्रयोग के द्वारा मालूम चलता है कि देखिए जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है वैसे ही इसमें डिफ्लेक्शन होता है, मुड़ जाता है, ये मुड़ाव होता है और ये दाहिने तरफ मुड़ जाता है। तो ये शो करता है कि जब भी किसी परिपथ में, किसी सर्किट में हम कंडक्टिंग वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते तो मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है। इसे शो करने के लिए, इसे दर्शाने के लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था और इसे ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट के नाम से भी कहते हैं। कभी कभी परीक्षाओं में ये ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट, इस तरह से क्वेश्चन आता है, डेमोन्स्ट्रेट ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट ओके टू शो दैट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इसको हम लोग दर्शाते हैं। और इस तरह से आप बिल्कुल ध्यान से इसे वॉच कीजिएगा, 2 बार ये वीडियो, तब जाके समझ में आएगा। और अपने फिजिक्स की कॉपी में आप सारे लिखिएगा। अभी जितना भी मैं पढ़ाई मैं किया हूँ, आपको पढ़ाया गया है, बताया गया है, वो सारा का सारा अपने फेयर कॉपी में आप सब लोग लिखिएगा। और फेयर कॉपी में लिखने के बाद में आप सब मुझे दिखलाइएगा। और इसके पहले भी चैप्टर था, सारा NCERT का सारा क्वेश्चन आप लिख लीजिए, ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। और लिख करके आप दिखलाइए, क्योंकि परीक्षाएं आने वाले मंथ में परीक्षाएं भी होंगी आपकी। और परीक्षा जब होगी अचानक तो आपके जब नोट्स तैयार नहीं रहेगा तो परेशानी होगी, याद करने में दिक्कत होगी आपको। इसलिए अपना नोट्स तैयार कर लीजिए और बीच में दिखाया कीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और आप सबको ऑल द बेस्ट। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। ओके, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।